refraction of light through a prism. Okay, so how look like prism? Prism is look like that. It's having a two triangular bases and three rectangular lateral surfaces. थ्री रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेसेस होता है. इसका डायग्राम आप जो है वो आपको अच्छे से देखेंगे तो उसमें आपको टू ट्रायंगुलर बेसिस दिखेगा और थ्री लैटरल सरफेस दिखेगा, जिसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो रेक्टेंगुलर जो सरफेस होगा, ठीक है, उसी से ही हम लोग क्या करेंगे, रेस को पास कराएंगे ऑफ दी लाइट रेस. ठीक है, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड बाय थ्रू दिस. ओके, the white light or rays, okay, is coming on from this way. Okay, and then it is going on this way and A, B and C. ठीक है, ये मिटा देता हूँ यहाँ से. The light rays is coming on from the side AB. Okay, and it is entering from air. यहाँ पे क्या हो रही, air. It is a rarer medium to the denser medium. Okay, the prism is a denser medium. So let's see how the light rays is travel. Okay, so this light rays is bent from this way and again it is bending on this way. Okay, so from here there is a normal. This is a normal. Okay, and this one is also normal, which is 90 degree. This one is 90 degree here and this one is 90 degree also here. Okay, and this is making angle with the normal is N and S M dash. Okay dear students, so that we can see that when light is passing through 2 points PQ, okay, and there is also 2 point RS, then both are QR is on the straight line, QR on a straight line, and PS is also straight line. ठीक है, कहने का मतलब होता है कि ये जो लाइट रेस होती है ये उतनी ही एंगल से इमर्ज होती है जितने एंगल से ये इंसर्ट होती है. तो दैट मीन्स दिस इज एंगल I एंड E, इमर्जेंस एंगल. ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल and on this way this is a reflected angle. Okay, and this is also incident angle. This is not an angle. Okay, so there is a many types of angles are made from here. Okay, and finally when we producing this line to furthermore, so there is a intersecting line producing it to the furthermore, then here is become angle D. This is known as angle of deviation. So I hope you understand this, how the light is entering from the surface AB and traveling it towards to the AC. Okay, and at the time firstly the light rays is entering from air to the prism, glass prism, from rarer to
denser medium and after that denser to the rarer medium at the time. ठीक है, so this phenomena is called refraction of light through a prism. Okay dear students, so here is some angles. एग्जाम में अगर आता है तो ये हो गया पॉइंट ई. ओके, दिस इज पॉइंट एफ. सो यहां से हम लोग सभी को नोट कर लेते हैं. यहां से PE. Here is some lines, okay, just like PE, EF and FS. So these having a name, just like PE is a incident ray, okay, and EF is a refracted ray, FS is the emergent ray, angle I, incident angle, angle R, refracted angle, angle E, emergence angle, एंड एंगल डी. ठीक है, एंगल डी कैसे बन रहा है? ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन जो है वो स्ट्रेटली जा रही है. अगर ये लाइन स्ट्रेटली जाती तो ये कुछ ऐसी होती, ठीक है, बट इट इज डेविएटेड हियर. सो एंगल डी इज एंगल ऑफ डेविएशन. ओके, एंड एंटर करती इन अ ग्लास प्रिज्म. ओके, सो एट द टाइम इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये नॉर्मल्स की तरफ बेंडिंग होती है इस साइड पे. ठीक है, एंड जब ये इमरजेंस होती है तो एट द टाइम क्या होती है? इट इज गोइंग आउट फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, जब ये इंसेट होती है तो ये रिफ्रैक्ट जो एंगल होता है वो नॉर्मल्स की तरफ डेविएटेड होती है, झुकते लग जाती है. ठीक है, और जब ये आउट हो जाती है तब ये नॉर्मल से आउट होने मतलब नॉर्मल से दूर जाने की कोशिश करती है. ठीक है, तो दिस फिनोमिना इज अ रिफ्रैक्शन ऑफ light through a prism. Dispersion. Okay, what is dispersion? When white light is entering in the glass prism, then it is splitting into vibrio. Into vibrio 7 colors.
ठीक है, इसको आप फुल फॉर्म भी लिख लेंगे अपनी कॉपी में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. Okay dear students, so this phenomena is called dispersion. ओके, सो यहाँ पर क्या है, ग्लास प्रिज्म बना लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो लाइट है वो क्या हो रही है, इंटर हो रही है, व्हाइट लाइट. ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड देन व्हेन इट इज रिफ्रैक्टेड, देन इट इज refracted into Vibgyor, refracted or splitting into Vibgyor. This phenomena is called dispersion. Okay, so ये क्या हो जाते हैं, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, so this phenomena is called dispersion. Okay, so इनकी जो होती है वो जो ऑर्डर ऑफ जो कलर्स है वो होता है V I B Y O R. ओके, मतलब क्या होता है, अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो नॉर्मल्स के साथ में जो नॉर्मल्स है, ठीक है, नॉर्मल एन डैश, इसमें जो सबसे जो बड़ी एंगल्स होगी वो होगी किसके साथ में, एंगल सबसे लास्ट में कौन सा है, यहाँ पे सबसे लास्ट में है रेड कलर्स. ओके, सबसे मतलब सबसे शुरू यहाँ पे बोले तो सबसे बड़ी एंगल जो होगी वो होगी किसकी, रेड कलर्स की, और जो सबसे स्मॉलर एंगल होगी वो किसकी होगी, तो ऑफ द वायलेट कलर. ठीक है, ब्लू लाइट कलर होती है, ये भी तो वायलेट कलर्स की होती है. तो ये चीजें आप याद रखेंगे. तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट. And this phenomena is found firstly by through the Isaac Newton. ठीक है, तो सबसे पहले ये फिनोमिना किसने देखा था, दिस फिनोमिना इज फाउंड बाय द आइजैक न्यूटन. ओके, और इसी के ऑब्टेन क्या होते हैं, जब इसी के सेम टू सेम हम लोग सेम प्रिज्म को अपोजिट रख लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, जस्ट लाइक इन दिस कलर्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, these colors are entering on same type of prism. Okay, then we get a
सिंगल व्हाइट लाइट। ओके स्टूडेंट, तो इसका अपोजिट भी आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग क्या करें, एक व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म ग्लास में एंटरिंग करा रहे हैं, देन वी गेट विबग्योर, एंड व्हेन विबग्योर इज एंटरिंग ऑन सेम टाइप ऑफ प्रिज्म, देन वी गेट अगेन अ व्हाइट लाइट। Okay, so this विबग्योर is known as light of spectrum। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। एंड वी कैन से दैट when this phenomena is happened, so red is last and violet is first। and अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे, यहाँ नीचे से, तो ये violet फर्स्ट हो गया, और यहाँ ऊपर से देखें तो रेड फर्स्ट हो गया। ठीक है, so when we talking about the violet rays, तो it is the most bending rays। ठीक है, सबसे ज्यादा जो बेंड हुई है वो वाली कौन सी रेस है, इट इज अ वायलेट रेस। एंड द लीस्ट बेंडिंग रेस इज अ रेड। जो सबसे कम जो बेंड हुई है वो कौन सी लाइट है, इट इज अ रेड लाइट। ओके, हाउ इज रेनबो इज फॉर्म्ड। ठीक है, it is called natural spectrum। ठीक है, it is called natural spectrum। so rainbow is formed by through the water droplets प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू ही रेनबो जो होता है वो फॉर्म होता है। जस्ट लाइक हियर वन वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, तो यहां पर एक वाटर ड्रॉपलेट है, जस्ट लाइक सन इज हियर एंड द रेस इज कमिंग ऑन दिस वे, then this rays is coming on this way and it is reflected on a विबग्योर as a विबग्योर। so this phenomena is a forming a ठीक है, तो ये जो होती है वायलेट होता है और ये रेड होती है, तो विबग्योर नाम से ये क्या हो जाती है, यहाँ से एक रेस होती है वो ऐसे वो फॉर्म हो जाती है। दिस इज अ फॉर्मिंग ऑफ रेनबो बाय थ्रू द वाटर ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट इज अ वर्किंग एज अ रेयर क्या रिफ्लेक्टेड मीडियम। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? ठीक है, so scattering of light is a phenomena by which we can see that the path of light। ठीक है, just like here in a previous class we studied। ठीक है, just like here is a water and light is passed on this way, the light is going out from the, but in this water glass we can't see the लाइट रेस। ठीक है, बट इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर ग्लास से इस चीजों को नहीं देख सकते। ठीक है, और वन हियर इज वन ग्लास ऑफ वाटर इन विच वाटर प्लस some droplet of milk, then the path of light is clearly visible। Okay, because at the time the particles are on the way of the light rays। ठीक है, जिस लाइट रेस जो है जिस पाथ में चल रही है उस पाथ में क्या हो जाते हैं, कुछ टाइनी पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं वो आ जाते हैं। दैट इज वे वी कैन सी दैट पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, बट हियर द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल।
So this phenomena is called scattering of light. By through that we can see that the sky is looking like green, and the sun is look like as a red at the time of rising. Okay, so this phenomena is called scattering of light. What is Tyndall effect? Tyndall effect is founded by John Tyndall in 19th century. Okay, so Tyndall effect of phenomenon is a scattering of beam of light, a medium containing small suspended particles. ठीक है, जस्ट लाइक एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, जब विंडो ओपन करते हैं अपने रूम्स की एंड देयर इज अ नो लाइट, सो देयर इज अ एंटरिंग अ व्हाइट लाइट एंड इनसाइड ऑफ द रूम देयर इज अ सस्पेंडेड पार्टिकल्स. Tiny particles are available just like smoke and dust, and at the time these smokes and dust are looking like as a light. Okay, and these lights look steadily running light. ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, विंडो ओपन करते हैं, तो वहां से क्या होती है, जो लाइट की जो बीम होती है वो वहां से हमें क्या करने लग जाती है, दिखने लग जाती है. ठीक है, कि लाइट की जो रेस है वो स्टेडली चलती है. तो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. व्हाई इज द कलर ऑफ स्काई ब्लू? ओके, सो कलर जो स्काई का जो कलर होता है वो ब्लू क्यों दिखता है मोस्टली टाइम्स? ओके, so it is looking like blue due to the scattering of light. ठीक है, स्कैट मतलब होता है कि some lights को when the in the way of light there is some particles, then it look like as a blue scattering of light. ठीक है, just like it is due to the phenomenon of the wavelength. wavelength का मतलब होता है the last एंड दी फर्स्ट. ठीक है, जो ये जो वायलेट जो रेस होती हैं, इट्स हैविंग अ लो और स्मॉलर वेवलेंथ. ठीक है, वेवलेंथ मतलब ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं. एंड जो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है, इट्स बिगर वेवलेंथ. ओके, ये दोनों फिनोमिना, why is the color of sky is blue and why the color of sun is red at the time of rising, this both phenomena is happening on this way. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो रेड के जो वेवलेंथ होते हैं, इट्स बिगर वेवलेंथ which is not reflected by a tiny particle when these are coming. just like here एक एग्जांपल बताता हूँ, सन. ठीक है, यहाँ से सन की रेस निकल रही है, there is a lots of rays and there is a particle in atmosphere. Okay, तो जो रेड जो रेस होती हैं, they have a bigger wavelength and the smaller wavelength which is reflected again by through the in the atmosphere. That is when the atmosphere is looking like as a blue. And same thing is happened when the sun is reflecting. ठीक है, तो ये at the time of क्या है, sun at the time of our नियरली ओवरहेड है. ठीक है, और जब सन जब इस लाइक होते है, यहाँ पर है सन, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी सेम फिनोमिना होती है. तो यहाँ पर बस उल्टा ये हो जाता है कि जो रेड की जो कलर होती है which is reaching on our eyes and the remaining all are reflected. That is where the sun is looking like as a red and the sky is looking like as a blue. Okay dear students, that's it. Finally our chapter 11th and 12th both are completed. Okay, so
and some parts of the chapter 12th or 11th, some part of chapter 11th, sorry, chapter 10th and 11th are completed. Some part of chapter 11 is removed by CBSE, so we are not studying in this year. We are studying only about the these things. ठीक है, इतनी चीजें हैं.